Good morning, class second, and here is our first chapter. Fun with friends. Sorry, F-U-N fun, W-I-T-H with F-R-I-E-N-D-S friends. F-I-L-L fill, I-N-N, T-H-E the, B-L-A-N-K-S blanks, W-I-T-H with T-H-E the, N-A-M-E-S names, O-F of, T-W-2, O-F of, Y-O-U-R your, F-R-I-E-N-D-S friends, T-H-E-N then, S-A-Y say, T-H-I-S this, P-O-E-M poem, A-L-O-U-D allowed, P-L-E-A-S-E please, B-E-B a, F-R-I-E-N-D friend, O-F of, M-I-N-E mine, A-N-D and, C-O-M-E come, A-N-D and, P-L-A-Y play, W-I-T-H with, M-E me, S-H-W-T-A Shweta, I-S is, A, F-R-I-E-N-D friend, O-F of, M-I-N-E mine, A-N-D and, K-A-S-M-I Kasmi, A-L-S-O also, P-L-A-Y-S plays, W-I-T-H with, M-E me, T-H-E the, N-A-I-R near, F-M-I-L-Y family, L-I-V-E-S lives, I-N in, C-H-E-N-N-A-I Chennai, T-H-E the, N-A-I-R near, F-M-I-L-Y family, H-S has, T-H-R-E-E 3, C-H-I-L-D-R-E-N children, C-H-I-L-D child, R-E-N rin, so children, U-M-A Uma, A-M-I-T Amit, A-N-D and, S-M-I-T-H-S Smita, T-H-E-Y they, L-I-V-E live, I-N in, A-N-E-I-G-H-B-O-U-R-H-W-D neighborhood, N-E-I-G-H-B-O-U-R neighbor, H-W-D hood, so neighborhood. T-H-A-T that, H-S has, M-A-N-Y many, H-O-U-S-E-S houses, T-H-E-I-R there, H-O-U-S-E house, I-S is, N-E-A-R near, T-H-E the, P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D playground, P-L-A-Y play, G-R-O-U-N-D ground, so playground. T-H-E the, N-A-I-R near, C-H-I-L-D-R-E-N children, P-L-A-Y play, T-H-E-R-E there, W-I-T-H with, F-R-I-E-N-D-S friends, W-H-O who, A-R-E-R, T-H-E-I-R there, F-R-I-E-N-D-S friends, T-O-D-A-Y today, T-H-E-Y they, A-R-E-R, P-L-A-Y-I-N-G playing, W-I-T-H with, M-O-S-H-I-N motion, A-N-D and, Z-U-B-A-I-R Zubair, O-F of, T-H-E the, K-H-A-N Khan, F-M-I-L-Y family, G-I-T-A Geeta, A-N-D and, D-E-E-P deep, F-R-O-M from, T-H-E the, G-H-O-S-H Gosh, F-M-I-L-Y family, A-R-E-R, A-L-S-O also, P-L-A-Y-I-N-G playing, W-I-T-H with, T-H-E-M them, V-I-S-H-A-L Vishal, A-N-D and, Y-A-S-H Yash, F-R-O-M from, T-H-E the, M-I-S-H-R-A Mishra, F-M-I-L-Y family, A-R-E-R, T-H-E-R-E there, T-W-2, T-W-2, A-L-L all, O-F of, T-H-E-M them, L-I-V-E live, N-E-A-R near, T-H-E the, N-A-I-R-S nairs, T-H-E-Y they, A-R-E-R, A-L-L all, N-E-I-G-H-B-O-U-R-S neighbors, N-E-I-G-H ne, B-O-U-R-S
birds. So neighbors. WHERE where, ARER, THE the, CHILDREN children, SMI THE Smita, IS is, ON THE the, SWC SAW saw, WITH with, GITA Geeta, AMIT Amit, AND and, YASH Yash, ARVR, ON THE the, MONKY monkey, BARS bars, MOSHIN motion, DEEP deep, AND and, UMA Uma, ARVR, ON THE the, MERRY Mary, GO ROUND round, VISHAL Vishal, and ZUBAIR Zubair, ARER ON THE the, SLIDE slide, UMA Uma, CALLS calls, OUT out, LET apostrophe S, let's, this means let us, go, HOME home, THEY they, SWC MRS, it will pronounce as Mrs. NAIR near, COMING coming, TO2 TAKE take, ALL all, THE the, CHILDREN children, BACK back, ALL all, THE the, FRIENDS friends, COME come, RUNNING running, RUN run, NING ning so running, TO2 HER her, MRS Mrs. NAIR nair, ASKS asked, DID did, YOU you, ENJOY enjoy, PLAYING playing, HERE here, THE the, CHILDREN children, reply, REPLY reply, OHOYS yes, MRS Mrs. NAIR nair, ASKS asked, DID did, YOU you, quarrel, QUARREL quarrel, THE the, CHILDREN children, LAUGH laugh, AND REPLY reply, OHONO no, IT it, WS was, SO so, MUCH much, FUN fun, CAN can, WEV COME come, HERE here, EVERY every, DAY day, MRS Mrs. NAIR nair, SAYS says, YES yes, OF off, COURSE course, WH80 what, GWD good, CHILDREN children, YOU you, ARER. So, first chapter, fun with friends. Fill in the blanks with the names of two of your friends, then say this poem aloud. Please be a friend of mine and come and play with me. Shweta is a friend of mine and Kasmi also plays with me. The Nair family lives in Chennai.
The Nair family has 3 children, Uma, Amit, and Smitha. They live in a neighborhood that has many houses. Their houses is near the playground. The Nair children play there with friends. Who are their friends? Today they are playing with Mohsin and Zubair of the Khan family, Geeta and Deep from the Ghosh family are also playing with them. Vishal and Yash from the Mishra family are there too. All of them live near the Nairs. They are all neighbors. Okay, so where are the children? Smita is on the seesaw with Geeta. Amit and Yash are on the monkey bar. Mohsin, Deep and Uma are on the merry-go-round. Vishal and Zubair are on the slide. Uma calls out, "Let's go home." They see Mrs. Nair coming to take all the children back. All the friends come running to her. Mrs. Nair asks, "Did you enjoy playing here?" The children reply, "Oh yes." Mrs. Nair asks, "Did you quarrel?" The children laugh and reply, "Oh no, it was so much fun. Can we come here every day?" Mrs. Nair says, "Yes, of course. What good children you are." So, time for some hard words. First hard word is your neighborhood. You can pause the video, you can take screenshots, whatever you feel comfortable, you can do that. So your first word is neighborhood, Neigghborhood, Neigghborhood, Neigghborhood. Another hard word is play, play, ground, ground, playground. And yes, Chennai is the capital. You have to find out that is the capital of which street. Okay. Another hard word for you is friends, 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 friends. Another hard word is your neighbors, 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 Neighbors. Another hard word, neighbors. And yes, home, 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 home. Quarrel, 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 quarrel. Okay. SAYS says, this is your other hard word. SAYS says, REPLY, reply. And of course, this is your other hard word, fun, FUN, fun. Enjoy, ENJOY, enjoy. This is your other hard word. Okay. You have to find out the hard words. Slide. You can find out what is slide. Okay.
All right. Playing, or you can find the hard word play, play. I think you all know the meaning of play. Okay. Yes. Fun with friends. So fill in the blanks with the names of two of your friends, then say this poem aloud. Means here we have to fill the name of our friend and then we have to say it aloud. Okay. So please be a friend of mine and come and play with me. Shweta is a friend of mine and Kasmi also plays with me. Okay. So here it's written Kasmi. So, the Nair family lives in Chennai. The Nair family has 3 children, Uma, Amit and Smita. Means there is a family and its name is Nair family and they live in a Chennai and they are having 3 children, that is Uma, Amit and Smita. Chennai, okay, Chennai is the capital and it is the capital of which state you have to tell me. You can pause the video or you can take the screenshot, but you have to tell me that Chennai is the capital of which state. Okay. Next, they live in a neighborhood that has many houses. Their houses is near the playground, and this Nair family, where they live, where in which community they live, there is also a playground near their house. Playground, it's a field. The Nair children play there with friends who are their friends. Okay, the Nair family means the family, they play there, they play in the playground with their friends. With whom? With their friends. Okay, and now who are their friends? Let's see that who are their friends. Today they are playing with Mohsin and Zubair of the Khan family. Okay, now this Nair family children, Uma, Amit and Smita, they are playing with Mohsin and Zubair, and Mohsin and Zubair are of the Khan family. They are from the Khan family. Geeta and Deep from the Ghosh family are also playing with them. So Geeta and Deep are also playing with them, and they are from the Ghosh family. Means Uma, Amit and Smita, they are playing with Mohsin, Zubair, Geeta and Deep. Vishal and Yash from the Mishra family are there too. Now Vishal and Yash are also there and they are from the Mishra family. So how many children are there? How many friends are there? Uma, Amit and Smita means, and they are from the Nair family. Then there are Mohsin and Zubair. They are from the Khan family. Alright, Geeta and Deep from the Ghosh family. And there is Vishal and Yash from the Mishra family are there too. Means how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 friends are there. 9 people are there. 9 children are there. Sorry, not people, but children are there, and they all are playing together. And where they are playing? In that playground, in the field, in that playground. All of them live near the Nairs. They are all neighbors. Now these all the family, they live near the Nair family. Okay, means they all are neighbors. Okay, they are of same mohalla, you can say, same communities, same society. Okay, and here is the next one. Yes. Where are the children? Smita is on the seesaw with Geeta and Amit and Yash are on the bars. Now where are the children? Let's find out that where are the children. So Smita is on the seesaw with Geeta. Now here she is Geeta and she is Smita. They are on the seesaw. Okay, and Amit and Yash are on the monkey bar. Now this is the monkey bar, and here is Amit
and this you can say is Yash. Moshin, Deep and Uma are on the merry-go-round. Now Moshin, Deep and Uma. This is Uma, Moshin and Deep. They three are on the merry-go-round. It's a kind of a swing. This seesaw is a kind of a swing. This monkey bar is also swing. So in this merry-go-round, Vishal and Zubair are on the slide. Now Vishal and Zubair are on the slide. This is your slide. It is also a kind of swing. You can say it's a slider that from here, this is your ladder. You have to climb the ladder, then you can slide from here. So it's called a slide. So Vishal and Zubair. This is Vishal, you can say, and this is Zubair, and they are on the slide. Uma calls out, "Let's go home." Now what happened? Uma, the mother of Uma, she calls out that let's go home. She said that they must be tired now, so she said that we must go home. Okay. They see Mrs. Nair coming to take all the children back. All the friends come running to her. They see means all the children, Uma, Smita and Amit, they saw that Mrs. Nair means their mom is coming to call them back. So all the friends, all the mates, they just come there running to her. They were running to reach her. Mrs. Nair asked, "Did you enjoy playing here?" Now what happened when Mrs. Nair reached to the playground and the kids reached to her? Then she asked them, "Did you enjoy? Is it fun?" So the children reply, "Oh yes." Now the children said, "Yes, of course, mom. We enjoyed here. We had fun here." Mrs. Nair asked, "Did you quarrel?" Quarrel means to fight. Okay. So then she just asked, "Did you quarrel? Did you fight?" The children laugh and reply. Now the children, they laughed aloud and then they reply, or they just gave the answer, "Oh no, it was so much fun. Can we come here every day?" So when Mrs. Nair, she asked them that did you fight, did you do any kind of argument or something, then the kids, they just laughed and they answered her question that no mom, it was so much fun here, and can we come here every day? Can we come and play here every day? Mrs. Nair says, "Yes, of course. What good children you are." So after hearing these all things, Mrs. Nair said that yes, of course you can come. She said, she tell that yes, you can come, and you are such a good children, and if you will also not fight with anyone, with any person, then your mom will also say that you are a good person, you are a good students, or you are a good person, right? So their mother also, Miss Mrs. Nair, also said that they are a good student. Okay, good children or good kids. All right. Hello everyone, good morning. My dear students, आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 2 की किताब पढ़ेंगे। आपका पहला पाठ है ईश वंदना कविता। तो आपकी पहली लाइन है, चलिए आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। हम ईश्वर से वरदान मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं।
पढ़ लिख कर हम बने गुणवान, कि हम पढ़ लिख कर के अच्छे व्यक्ति बने और अच्छी आदतों को सीखें। रोज़ नेक एक काम करें, हम रोज़ एक नया काम करें। माता पिता का नाम करें, अपने माता पिता का नाम करें, मतलब प्रसिद्ध करें। जन जन के तुम ही दाता, तो जन जन मतलब सभी, इस संसार में रहने वाले सभी लोग, कि तुम ही दाता हो। दाता मतलब भगवान। हम सबके हो भाग्य विधाता, हम सभी के भाग्य को बनाने वाले हो। नित करें हम तेरा गुणगान, नित मतलब प्रतिदिन, गुणगान अच्छी आदतों को बार बार बताने वाले। तो हम प्रतिदिन आपका गुणगान करें, आपको याद करें। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। तो चलिए बच्चों, अब हम नीचे आगे की लाइन पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़िए। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, आपकी शक्ति बहुत ही अपार है, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी आपकी शक्ति है। करते दीनों का तुम उद्धार, तुम हमेशा ही, दीनों मतलब गरीबों का उद्धार करते हो। उद्धार का अर्थ है कल्याण करना। हम बालक तेरे नादान, हम सभी बहुत ही नादान बालक हैं, नासमझ बालक हैं। हमें प्रभु हमें दो विद्या का दान, हे प्रभु हमें विद्या का वरदान दो। ठीक है बच्चों, आप भी इसी प्रकार पूरे पाठ को पुनः पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पुनः इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। आप भी हमारे साथ बोलते जाइए। रोज़ नेक एक काम करें, माता पिता का नाम करें। जन जन के हो तुम ही दाता, हम सबके हो भाग्य विधाता। नित करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। फिर आगे बढ़ते हैं। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। तो बच्चों देखिए, हमने इसमें अंडरलाइंस कर रखी हैं, तो आपको इन अंडरलाइंस वर्ड की, मतलब शब्दों की मीनिंग्स लिखनी है, अर्थ लिखना है इनका। प्रभु मीन्स ईश्वर भगवान, वरदान मीन्स आशीर्वाद। आगे लाइन में गुणवान अच्छी आदतें, रोज प्रतिदिन, नेक अच्छे। आगे जाएंगे, जन जन मतलब लोग, दाता भगवान, भाग्य विधाता भाग्य को लिखने वाला या भाग्य को बनाने वाला, नित्य प्रतिदिन, गुणवान अच्छी आदतों को बार बार बताना या अच्छी आदतों को बार बार सिखाना। आगे देखेंगे तेरी शक्ति, तो शक्ति का अर्थ है ताकत, और तेरी का अर्थ यहाँ पर है भगवान। हम ईश्वर के लिए तेरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अपार, जिसका कोई अंत ना हो। दीनों मतलब गरीबों, उद्धार कल्याण। ठीक है बच्चों, तो हम इस प्रकार इन सभी मीनिंग को अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों, जिस प्रकार हमने यहाँ पर आपको लिखकर बताया है कि एक तरफ शब्द लिखें, एक तरफ अर्थ लिखें, तो इस प्रकार आप अपनी पुरानी कॉपी में ही इस कार्य को करें और उसको याद करें। आगे जब आपके स्कूल खुलेंगे तो हम इस कार्य को आपका चेक करेंगे और देखेंगे, और आप इन सभी मीनिंग्स को, पूरे पाठ की जो भी मीनिंग बताई गई हैं, इसी प्रकार लिखें और याद करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम
जहाँ हमने कल आपको लेसन पढ़ाया था पाठ, उसी के आगे का हम आज उसी पाठ की शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। और देखिए बच्चों, इन्हीं शब्दार्थ को हम कॉपी में लिखेंगे भी, जिस प्रकार हमने कल आपको बताया था लिखकर। ईश प्रभु भगवान, वरदान आशीर्वाद, विधाता बनाने वाला, उद्धार कल्याण। तो आप भी हमारे साथ पढ़िए पुनः। ईश प्रभु भगवान, वरदान आशीर्वाद, विधाता बनाने वाला, उद्धार कल्याण। हाँ, आगे देखेंगे इसी प्रकार। वंदना नमस्कार, गुणवान गुणों से भरपूर, अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, नादान ना समझ। पुनः पढ़ेंगे। वंदना नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है जैसे हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं उसको हम नमस्कार कहते हैं, या अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं उसको भी कहते हैं नमस्कार। आगे देखेंगे। गुणवान गुणों से भरपूर, मतलब सभी प्रकार के गुण हो एक इंसान में, उसको कहते हैं गुणों से भरपूर। अपार जिसको कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। आगे नादान ना समझ। ठीक है बच्चों, इन्हीं मीनिंग्स को हम लिखेंगे, जहाँ हमने कल मीनिंग्स लिखी थी उसी के नीचे लिखेंगे और हम इसको याद भी करेंगे। ठीक। देखिए बच्चों, कल आपने जहाँ शब्दार्थ लिखे थे उसी के आगे आपको लिखना है जिस प्रकार हमने लिखा हुआ है ये सब। तो ईश प्रभु भगवान, वरदान आशीर्वाद, विधाता बनाने वाला, उद्धार कल्याण। ठीक इसी प्रकार आप भी लिखें, और हम अभी और आगे आपको बताएंगे लिखकर, तो आप उनको भी लिखेंगे। तो चलिए देखिए आगे लिखते हैं। वंदना नमस्कार, गुणवान गुणों से भरपूर, अपार अपार जिसकी कोई सीमा ना हो, नादान ना समझ। ठीक है बच्चों, देखा आपने हमने कैसे लिखा ये सारी वर्ड्स और इनके अर्थ। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कॉपी में लिखिए और उसको याद करिए। जब आपके स्कूल खुलेंगे तो हम इन सभी मीनिंग्स को आपसे सुनेंगे और आपके मीनिंग्स को चेक भी करेंगे, देखेंगे कि आपने छुट्टियों में कितना काम किया। ठीक है बच्चों, अब आप अपने हाथों को धुल लीजिए। फिर इसके बाद जब खाना खाएं उससे पहले भी आप अपने हाथों को हैंड वॉश करिए, और दिन में कई बार अपने हाथों को हर 20 मिनट 30 मिनट बाद धुलते ही रहिए, साफ पानी या साबुन से। ठीक, ओके, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य, जिसको कहते हैं हिंदी लिटरेचर। ओके, तो इससे पहले आपको करना क्या है, मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। सभी को पहले अपने अपने हाथ धुलने जाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए जाइए, आप सबसे पहले आप अपने हैंड वॉश करिए, फिर हम आपको ये पहला पार्ट पढ़ाएंगे। ओके, तो देखिए आपका पहला लेसन है ईश वंदना। इसका नाम है कविता। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। प्रभु का अर्थ है ईश्वर। प्रभु का क्या अर्थ है? ईश्वर। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। प्रभु का अर्थ है ईश्वर, भगवान। ओके, वरदान का आशीर्वाद। पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। गुणवान का अर्थ होता है अच्छी आदतों वाला। जिसके पास अच्छी आदतें हैं उसको हम कह सकते हैं गुणवान। आगे पढ़ते हैं बच्चों। रोज नेक
एक काम करें। रोज का अर्थ है प्रतिदिन, तो जैसे हमारी डेली लाइफ होती है ना, उसको ही कहते हैं प्रतिदिन। आगे पढ़ते हैं। माता पिता का नाम करें। माता पिता मतलब हमारे पेरेंट्स, नाम उनके फेमस करें, उनके नाम को सभी लोग जानें कि ये उनके बच्चे हैं। हमारे मम्मी पापा का सभी कोई नाम ले, हमें ऐसा काम करना है कि जिससे हमारे मम्मी पापा का नाम हो और साथ में हमारा भी नाम हो। ठीक है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। जन जन के हो तुम ही दाता। जन जन का अर्थ मतलब लोग, जैसे सभी लोग हैं ना, उनको ही बोला गया है जन जन के हो तुम ही दाता। दाता का अर्थ है भगवान, दाता का अर्थ भी भगवान होता है। ओके, आप भी हमारे साथ पढ़िएगा तो आपको जल्दी यह पोइम याद हो जाएगी। चलिए बच्चों, आगे की लाइन पढ़ते हैं। हम सबके हो भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का अर्थ होता है हमारे भाग्य को बनाने वाला, मतलब भाग्य को लिखने वाला भी कह सकते हैं, बनाने वाला भी कह सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। नित्य करें हम तेरा गुणगान। नित्य का अर्थ प्रतिदिन, रोज। हम मतलब हम सभी लोग, और तेरा, तेरा का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। तेरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए। गुणगान, गुणगान का मतलब उनकी वंदना करना। तो नित्य करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। वरदान का अर्थ आशीर्वाद। ओके बच्चों, इतना ओके बच्चों, देखते हैं। अभी हमने आपको वरदान तक पढ़ाया ना, यहाँ तक। अभी हम इस बार इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और आप भी हमारे साथ पढ़िएगा तो और अच्छा रहेगा। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान, रोज नेक एक काम करें, माता पिता का नाम करें, जन जन के हो तुम ही दाता, हम सबके हो भाग्य विधाता, नित्य करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। ओके बच्चों, देखा आपने, इसको हमने पुनः रीडिंग की, मतलब फिर से पढ़ा और आपको इनकी सबकी वर्ड मीनिंग्स बताई। तो आपको इन वर्ड मीनिंग्स को क्या करना है, शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो जो हम अभी मीनिंग आपको लिख कर दिखाएंगे तो वो आप अपनी पुरानी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन इससे पहले अभी एक बार आप अपने हैंड वॉश करिए, फिर हम आगे की लाइन पढ़ते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखेंगे, तेरी शक्ति बड़ी अपार। तेरी का अर्थ अभी देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया था तेरा, तो तेरा और तेरी यह दोनों शब्द ईश्वर के लिए मतलब भगवान के लिए प्रयोग किए गए हैं। ओके, शक्ति, शक्ति का अर्थ है ताकत, एनर्जी। बड़ी अपार, बड़ी अपार, अपार का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, न जिसकी कोई नाप तौल न की जा सके, या जिसको मापा ना जा सके कि कितनी लंबी कितनी छोटी, ऐसी कोई चीज़, तो वो होता है अपार, जिसकी कोई नाप तौल ना हो सके, अपार, जिसकी कोई सीमा ना हो। आगे देखेंगे, करते दीनों का तुम उद्धार। दीनों मतलब, दीनों का अर्थ है गरीबों, दीनों का क्या अर्थ है? गरीबों। का तुम उद्धार, उद्धार का अर्थ है कल्याण, मतलब एक प्रकार से ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा होना, उसको कह दिया गया उद्धार करना, हमारा कल्याण करना। अर्थ और अच्छे से बताते हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाना, वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा, उसको ही हम ईश्वर से कहते हैं कि करते दीनों का तुम उद्धार। ओके, आगे देखते हैं। हम बालक तेरे नादान। नादान का अर्थ है जिसके पास कोई बुद्धि ना हो, तो हम ईश्वर के लिए क्या हैं? बिना बुद्धि के बच्चे तो हैं, जब तो हम ईश्वर से बुद्धि मांगते हैं कि हे ईश्वर हमारे पास बुद्धि नहीं है, कार्य नहीं हम कुछ कर पाते हैं, तो हमको अच्छी राह दिखाइए और अच्छी बुद्धि दीजिए, उसी को कह दिया गया नादान। हम बालक
तेरे नादान। जिस प्रकार एक छोटा नन्हा सा बालक होता है, उसके पास कोई भी प्रकार की सोचने की, बोलने की और समझने की क्षमता नहीं होती, तो उसको मम्मी पापा जो होते हैं ना, उसको सिखाते हैं बचपन से कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, चित्रों को देखकर समझाते हैं। ठीक है, इस उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को नादान कहते हैं। उसी प्रकार हम भी अभी ईश्वर के लिए एक छोटे बच्चे के समान हैं, तो हम भी एक नादान बच्चे ही हैं। आगे की लाइन पढ़ते हैं बच्चों। प्रभु हमें दो विद्या का दान। प्रभु का अर्थ देखिए, हमने अभी आपको पहले भी बताया, प्रभु का अर्थ है ईश्वर। हमें मतलब हम सबको दो विद्या, विद्या का अर्थ है जैसे हमें बुक पढ़ने की ज्ञान मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, हर प्रकार की जानकारियाँ मिल जाएं छोटी छोटी, तो वो क्या है, विद्या है। जिससे हम अच्छा बुरा सब चीज़ें सीख सकें, वही हमारे लिए विद्या है। का दान, दान का अर्थ है कुछ भी किसी को देना। दान का अर्थ क्या होता है, किसी को कुछ भी देना। तो ईश्वर जब हमको देगा, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि हमको दे दो विद्या का दान। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों एक बार हम इसको फिर से रीड कर लेते हैं। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। ओके बच्चों, इतना आपने एक बार रीड किया। अभी हमें आपको एक बार फिर से रीड कराएंगे यहाँ पर, तो अभी आप हमारे साथ रीड करेंगे। ओके। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। रोज नेक एक काम करें, मात पिता का नाम करें। जन जन के हो तुम ही दाता, हम सबके हो भाग्य विधाता। नित करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। इसको आप भी हमारे बाद रीड करिएगा। ओके। फिर नीचे देखते हैं। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। ओके बच्चों, हम एक बार फिर से इसको रीड करते हैं और आप भी हमारे साथ रीड करेंगे और इस पोएम को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो फिर से रीड करते हैं। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। रोज नेक एक काम करें, मात पिता का नाम करें। आप भी हमारे साथ पढ़ते जाइए। फिर से पढ़ते हैं। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। रोज नेक एक काम करें, मात पिता का नाम करें। जन जन के हो तुम ही दाता, हम सब के हो भाग्य विधाता। नित करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। देखा बच्चों, हमने कैसे इस पोएम को पढ़ा। आप भी इसको पढ़िए और इसको अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक, आइए बच्चों हम एक बार फिर से इसको रीड करते हैं। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। रोज नेक एक काम करें, मात पिता का नाम करें। जन जन के हो तुम ही दाता, हम सब के हो भाग्य विधाता। नित करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। अगर हम इसको बेटा गा कर सुनाएं तो कैसा लगेगा, जरा आप एक बार गा के देखिए। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। रोज नेक एक काम करें, मात पिता का नाम करें। जन जन के हो तुम ही दाता,
हम सब के हो भाग्य विधाता। नित्य करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। तो देखिए बच्चों, आप भी ऐसे ही गाकर देखिए, कितना मज़ा आएगा, और मम्मी को सुनाइए। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। ठीक, तो अब आप इसके बाद पढ़ने के बाद हम आपको इनकी जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये हार्ड वर्ड्स कहलाते हैं, तो इनको हम आपको लिखना बताएंगे कि कैसे लिखना है, और यह काम आपको अपनी पुरानी कॉपी में लिखना है। तो अभी हम आपको इसको लिखना बताते हैं। इससे पहले आप एक बार अपने हैंड वॉश करके आइए, जब तक हम आपको लिखने का तरीका बताते हैं। और अपनी कॉपी ज़रूर लेकर बैठिए अपने साथ, पेन पेंसिल जिस चीज़ से आप लिख रहे हैं उसको आपको लेके बैठना है। ओके, और इरेजर भी साथ में अगर पेंसिल से लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है पाठ 1 ईश वंदना और कविता, तो इस प्रकार आप भी लिखिए पाठ 1 ईश वंदना। इसी प्रकार अभी हम आपको इसी के जो आपको वर्ड मीनिंग्स बताएंगे बीच बीच में हार्ड वर्ड, उसको भी लिखना बताएंगे। आप वह भी देखिएगा कैसे लिखते हैं। देखिए, शब्द एक तरफ आप लिखेंगे शब्द, एक तरफ लिखेंगे अर्थ, और उसकी वर्ड मीनिंग्स नोट करेंगे। प्रभु और भगवान, प्रभु भगवान, वरदान आशीर्वाद, वरदान आशीर्वाद। आगे देखते हैं कैसे लिखना है, तो आप भी इसी प्रकार लिखते जाइए। देखिए, गुणवान, गुणों से भरपूर, मतलब अच्छी आदतों वाला। रोज, प्रतिदिन, नेक, अच्छे। तो ये सारे वर्ड हमने कहाँ से लिखे? इन्हीं लाइनों से लिखे हैं जहाँ ये हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, तो इन्हीं लाइनों से हमने ये इन सभी शब्दों को लिखा है। तो आप भी इनको लिखिए, और आगे देखिए बच्चों, अभी हम आपको और आगे दिखाएंगे, तो आप उनके वर्ड्स भी सभी लिखेंगे। देखिएगा, ये जो सभी लिखी हुई है ना मीनिंग, तो इनको भी आप इसी प्रकार उन शब्दों के नीचे लिखेंगे। ओके, ओके। देखिए बच्चों, हमने अभी और आगे मीनिंग्स लिखी हुई हैं यहाँ पर, इस प्रकार आपको भी लिखना है। तेरी का अर्थ तुम्हारी, मतलब ईश्वर के लिए कहा गया है भगवान। शक्ति ताकत, दीनों गरीबों। ओके, इस प्रकार आप पूरे पाठ की वर्ड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सभी वर्ड दिए हुए हैं ना, ये दिए हुए हैं, और ये इधर पर भी लेसन में दिए हुए हैं। इन सबको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जैसे कि हमने आपको लिखना बताया है। ओके बच्चों, तो अब हम आपको अगला पेज अगले पेज के लेसन की रीडिंग कराएंगे। ओके बच्चों, हम एक बार फिर से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। प्रभु हमें दो ऐसा वरदान, पढ़ लिख कर हम बने गुणवान। रोज नेक एक काम करें, माता पिता का नाम करें। जन जन के हो तुम ही दाता, हम सब के हो भाग्य विधाता। नित्य करें हम तेरा गुणगान, प्रभु हमें दो ऐसा वरदान। आगे देखते हैं। तेरी शक्ति बड़ी अपार, करते दीनों का तुम उद्धार। हम बालक तेरे नादान, प्रभु हमें दो विद्या का दान। तो इस प्रकार बच्चों आपको भी पूरी पोएम की रीडिंग करनी है, और समय समय पर अपने हाथों को हैंड वॉश करते रहना है। तो हम अभी आपको आगे की पेज की वर्ड मीनिंग्स बताएंगे, और उसको भी लिखना बताएंगे कि कैसे लिखना है। ओके, अभी बाय, फिर 2 मिनट बाद फिर मिलते हैं। ओके, स्टार्ट बच्चों। देखिएगा, शब्दार्थ, शब्दार्थ का अर्थ होता है वर्ड मीनिंग। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वर्ड मीनिंग, उसको ही हिंदी में कहते हैं शब्दार्थ। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। ईश, प्रभु भगवान। ईश का अर्थ क्या है? प्रभु भगवान, अर्थात गॉड। इंग्लिश में बोला जाए गॉड। नेक्स्ट, वरदान
आशीर्वाद, वरदान, आशीर्वाद, ब्लेसिंग। विधाता, बनाने वाला, विधाता, बनाने वाला, मतलब हमको बनाने वाला, उसको क्या उनको क्या कह दिया गया? विधाता। आगे देखते हैं, उद्धार, कल्याण, उद्धार, कल्याण। वंदना, नमस्कार, वंदना, नमस्कार। गुणवान, गुणों से भरपूर, गुणवान, गुणों से भरपूर। अपार, जिसकी कोई सीमा ना हो, अपार, जिसकी कोई सीमा ना हो। नादान, ना समझ। तो बच्चों देखिए, इनको आपको हमारे साथ पढ़ना है और याद करना है। तो अभी हम आपको लर्न कराते हैं। चलिए बोलिए हमारे साथ साथ, ईश, प्रभु, भगवान, वरदान, आशीर्वाद, विधाता, बनाने वाला, उद्धार, कल्याण, वंदना, नमस्कार, वंदना, नमस्कार। गुणवान, गुणों से भरपूर। अपार, जिसकी कोई सीमा ना हो। अभी हमने बताया था सीमा का अर्थ जिसकी कोई नाप तौल ना हो सके, लंबाई चौड़ाई या गहराई किसी भी प्रकार से उसको नापा ना जा सके, उसको ही कह दिया गया जिसकी कोई सीमा ना हो। नादान, ना समझ, मतलब जिसके पास बुद्धि ना हो, उसे कह दिया गया ना समझ। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ईश, प्रभु, भगवान। प्रभु तो आप जानते हो ना, जिसको भगवान जी को हम बोलते हैं प्रभु, भगवान, अल्लाह। ईसा मसीह को भी हम भगवान बोलते हैं, ईश बोलते हैं उनको। ओके। वरदान, आशीर्वाद, विधाता, बनाने वाला, मतलब हम सबको बनाने वाला, उनको क्या कह दिया गया? विधाता। आशीर्वाद मतलब हम जो भी ईश्वर से प्राप्त करते हैं वह हमारे लिए आशीर्वाद होता है। जैसे हमारे माता पिता हमको मिले, हमें खाने के लिए खाना देते हैं, भगवान देते हैं ना। फिर इसी प्रकार उद्धार, कल्याण, मतलब हम सभी का कल्याण करना, नेक राह पर चलना, अच्छी अच्छी बातों को सीखना, वही हमारे लिए कल्याणकारी है, उसको ही कह दिया गया कल्याण। वंदना, नमस्कार, वंदना, नमस्कार। गुणवान, गुणों से भरपूर, गुणवान, गुणों से भरपूर। अपार, जिसकी कोई सीमा न हो, अपार, जिसकी कोई सीमा ना हो। नादान, ना समझ। ओके बच्चों, इस प्रकार आपको इनको पढ़ना है और अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको लिखना बताएंगे। तो जब तक आप रेस्ट कर लीजिए और अपने हैंड वॉश कर लीजिए। ओके, Good morning all of you. Let's students start reading lesson 1. The name of lesson is types of plants. Types of plants means plants के प्रकार। TYPES types of plants. PLANTS plants. Put your finger, take a screenshot, listen and read carefully. Look at the screenshot. When you think of plants, you probably think of flowers, vegetables, fruits and trees. When you think think of plants, you probably means PROBABLY, probably means शायद।
या संभवतः, probably thinks of flowers, vegetables, fruits and trees. Most plants have roots that live in the soil. Most plants have roots. Roots means जड़ें, जो पेड़ की जड़ें होती है ना, प्लांट्स या ट्रीज की जड़ें, रूट्स, दैट लिव इन द सॉइल. सम ग्रो in the water and a few grow in desert. Some grow in the water and a few grow in desert. DESERTS, deserts. Deserts means होता है रेगिस्तान. Plants need water, sunlight, minerals and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, पता है आपको? एक गंधहीन गैस जो मनुष्य और पशु सांस लेने से अपने बॉडी से बाहर की तरफ फेंकते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. टू ग्रो. ओके, रीड अगेन. प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्रो. कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स क्या होता है, अभी मैंने बताया. यस, एक गंधहीन गैस होती है जो मनुष्य और पशु सांस लेने में जो अपने अंदर से बाहर सांस छोड़ते हैं, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन. प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन. एनर्जी, ENERGY, energy from the sun. Plants get energy from the sun. Okay, please turn the page. Types of plants. Types of plants. There are various types of plants around us. There are various, VARIOUS, various means विभिन्न प्रकार. various types means होता है विभिन्न प्रकार के. various types of plants around us. Plants are of different shape and size. Plants are of different different shape, shapes, different shapes and sizes means different shape means होता है अलग अलग तरह के आकार वाले होते हैं. Some plants are very big. Some plants are very big. Some are small. Some plants are very big. Some are small. And some are very small. Okay, some plants are very big, some plants very big, some are small, and some are very small. On the basis of their shape and size,
On the basis of their shape and size, we classify the plants in the following ways. On the basis of their shape and size, we classify the plants in the following ways. Classifies means होता है वर्गीकृत. Okay. Now trees. What is trees? Okay. Big and tall plants are called trees. Big and tall plants are called trees. Trees have a big and strong stem. Trees have a big and strong stem. The stem of a tree is called trunk. The stem of a tree is called trunk. Trunk, TRUNK. Trunk means वृक्ष का तना. जो तने होते हैं वृक्ष के, उसको हम ट्रंक कहते हैं. Trees stand straight. 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 Trees straight without any support. Straight means सीधा. Support, SUPPORT. Support means सहारा. In most trees, the trunk bears many small. In most trees, the trunk bears many small stems called branches. In most trees, the trunk bears many small stems called branches. 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 Trees live for many years. Trees live for many years. Some trees like the banyan can live for more than hundreds of years. Trees live for many years. Some trees like the banyan can live for more than hundreds of years.